Hello students, so today we will discuss chapter number 1. The name of the chapter is Classification of Computers, and the first topic of this chapter is here in front of you, categories of computers. In this chapter we will learn what are the different categories of computers, how do we categorize computers based on their functioning, and how can we categorize computers on the basis of size, speed, processing power, and cost. So let's have a look of this video. Here, categories of computers. Nowadays, different types of computers are used that can be categorized on different basis. आजकल अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स यूज होते हैं जिनको हम अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. Okay, so what are the criteria on the basis of which we can categorize computers? Here in the picture you can see here, as I will show you. Here you can see a watch, a meter, or here you can see the type of instrument that is used to measure blood pressure or heart functioning. Okay, so we can categorize computers on the basis of some criterias. कुछ criterias के according उनको हम categorize कर सकते हैं. तो first is functioning, and second we can categorize computers on the basis of their size, speed, processing power and cost. पहला हम functioning के base पर categorize कर सकते हैं computers को, और दूसरा size, speed और processing power के base पर हम और cost के base पर categorize कर सकते हैं. तो किस तरह से categorize किया जाएगा उन्हें इस वीडियो में हम देखेंगे. Let us learn about these categories in detail. First is functioning. On the basis of their functioning, computers can be classified into three categories which are as follows. तीन तरह से हम categorize कर सकते हैं functioning के base पर. किस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे. First type is analog computer. So पहला जो टाइप है फंक्शनिंग के बेस पर, इसको हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर. एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? इट रेफर्स टू अ कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स बाय मेजरिंग इंस्टेड ऑफ काउंटिंग. ये एक तरह का कंप्यूटर होता है जो मेजरिंग पर वर्क करता है, ऑपरेट करता है, एज कंपेयर टू काउंटिंग. काउंटिंग पर ये वर्क नहीं करता. मीन्स कंप्यूटर दो तरह से वर्क करते हैं, एक काउंटिंग पर, एक मेजरिंग पर. It measures the continuously changeable physical quantities like voltage, pressure, water flow, etc. एनालॉग कंप्यूटर्स क्या मेजर करते हैं? ये चेंजेबल फिजिकल क्वांटिटीज जैसे वोल्टेज, प्रेशर, वाटर फ्लो एटसेट्रा इन्हें मेजर करते हैं, और ये क्वांटिटीज कंटिन्यूअसली चेंजेबल होती है. ठीक है, ये क्वांटिटीज कंटिन्यूअसली चेंजेबल होती हैं, और ऐसे कंप्यूटर्स जो इनको मेजर करते हैं उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं. यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं आगे कि कौन कौन से कंप्यूटर्स एनालॉग कंप्यूटर्स में आते हैं. यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये एक वोल्टेज मीटर है, और वोल्टेज मीटर यहाँ पर कंटिन्यूअसली चेंजेबल वोल्टेज को मेजर करता है. This type of computers generally displays the output in the form of graph. Examples of analog computers are mercury thermometer, speedometer in cars, old radio, etc. इस तरह के कंप्यूटर्स जो डिस्प्ले करते हैं आउटपुट को एक ग्राफ की फॉर्म में करते हैं जनरली, क्योंकि ग्राफ
जनरली एक कंटिन्यूअसली चेंजेबल डेटा को डिस्प्ले करता है। वहां से हम पता लगा सकते हैं कि कंटिन्यूअसली डेटा किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से डेटा इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। अब एग्जांपल्स हैं एनालॉग कंप्यूटर्स के। डिजिटल थर्मोमीटर, you can see here. Next is here you can see the digital meter, speedometer, and old radio. These are the examples of analog computers. And next type of computer that is categorized according to the function is digital computer. Digital computer क्या होता है? It refers to a computer that uses digits, binary numbers, 0 and 1s, to generate, process, and display data. The results produced by digital computers are more accurate than that of analog computer. तो डिजिटल कंप्यूटर्स बाइनरी डिजिट्स पर ऑपरेट करते हैं। बाइनरी डिजिट्स की डेटा को, बाइनरी डिजिट्स हमारी 2 डिजिट होती हैं जिनको हम 0 और 1 कहते हैं। बाइनरी डिजिट्स को जनरेट कर सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स, इनको प्रोसेस करते हैं और इनको डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर्स आर मोर एक्यूरेट। इनसे जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो कहीं ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स। तो इनके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि कौन कौन से डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। आपकी स्क्रीन पर सामने आप देख सकते हैं। फर्स्ट हेयर इज डिजिटल वॉच, डिजिटल थर्मोमीटर एंड डिजिटल मीटर। These are the examples of digital computers. All the modern computers that we use, जो भी हम मॉडर्न कंप्यूटर्स जिनको हम यूज करते हैं, लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स। इसके अलावा सम अदर एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स आर डिजिटल वॉच, जैसा मैंने अभी आपको बताया, डिजिटल थर्मोमीटर हेयर एंड इलेक्ट्रिसिटी मीटर, ये आप देख सकते हैं। ये सभी डिजिटल कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ और कैटेगरीज हैं कंप्यूटर्स की जिनको हम, नेक्स्ट कैटेगरी इज हाइब्रिड कंप्यूटर। फंक्शनिंग के बेस पर जो थर्ड कैटेगरी है कंप्यूटर की वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? It refers to a computer that provides the functionality of both an analog and digital computers while processing and displaying data. तो ये दोनों तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है एज एन एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। जब डेटा को प्रोसेस करना होता है या डिस्प्ले करना होता है तो ये दोनों तरह की फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड कर सकता है। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर जो स्पीड होती है वो एनालॉग कंप्यूटर की जैसी होती है और जो एक्यूरेसी होती है वो डिजिटल कंप्यूटर की जैसी होती है। इट यूजेस द स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड एक्यूरेसी फ्रॉम डिजिटल कंप्यूटर। इस तरह से जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। Next type of computers we can categorize is, this type of computers are generally used in scientific research. कहाँ पर यूज करते हैं हम इन कंप्यूटर्स को? जनरली हम यूज करते हैं साइंटिफिक रिसर्च में और कुछ स्पेशलाइज एप्लीकेशंस में हाइब्रिड कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हार्टबीट मेजरिंग मशीन इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द हाइब्रिड कंप्यूटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हार्टबीट मेजरिंग मशीन है, ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है।
दूसरा टाइप साइज, स्पीड एंड प्रोसेसिंग पावर के बेस पर भी हम कंप्यूटर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं. सो कंप्यूटर्स आर डिफरेंट इन देयर साइज, प्रोसेसिंग पावर, स्पीड एंड कॉस्ट. On the basis of these factors, computers can be categorized as follows. तो स्पीड, प्रोसेसिंग और पावर के बेस पर, प्रोसेसिंग पावर और कॉस्ट के बेस पर जो हम कैटेगराइज करते हैं, उसमें सबसे पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? अ माइक्रो कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट हैज वन माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो कंप्यूटर में केवल एक माइक्रो प्रोसेसर होता है एज ए प्रोसेसिंग यूनिट. एक छोटा कंप्यूटर होता है और कम एक्सपेंसिव होता है. इट इज अ स्मॉल एंड लेस एक्सपेंसिव डिजिटल कंप्यूटर. इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. राइट साइड में जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक माइक्रो कंप्यूटर है. दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर आर मेड ऑफ टू बी यूज्ड बाय सिंगल यूजर एट ए टाइम. केवल एक यूजर इसको एक बार में यूज करता है जनरली. और माइक्रो कंप्यूटर का जो दूसरा नाम है वो है पीसी, और हम कह सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर. कुछ और एग्जांपल्स माइक्रो कंप्यूटर के आप देख सकते हैं. डेस्कटॉप. डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर का एक एग्जांपल है. इट इज अ पर्सनल कंप्यूटर प्लेस्ड एट अ सिंगल प्लेस ऑन अ डेस्क और अ टेबल. डेस्कटॉप जनरली एक डेस्क पर या टेबल पर माउंटेड होता है और all its components such as keyboard, mouse and storage devices are connected through wire or wireless. इसके जो components हैं या तो वायर से या वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के, जैसे अभी आपसे डिस्कस किया है. आगे आप देख सकते हैं. ड्यू टू its size and power requirements, we cannot carry this type of computers. Desktop computers are generally used in schools, colleges, offices, etc. इस तरह के कंप्यूटर्स की पावर रिक्वायरमेंट की वजह से और इनके साइज की वजह से हम इनको एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते. और इस तरह के कंप्यूटर्स जनरली स्कूल, कॉलेजेस में, ऑफिस में यूज किए जाते हैं. दूसरा टाइप का जो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है उसको हम कहते हैं लैपटॉप. सो इट इज अ पोर्टेबल एंड स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर दैट इज सुटेबल फॉर यूज व्हाइल ट्रैवलिंग. ये एक कंप्यूटर होता है जिसको हम ट्रैवलिंग में यूज कर सकते हैं. ये स्मॉल साइज का होता है. ठीक है. वी कैन यूज अ लैपटॉप कंप्यूटर बाय कीपिंग इट ऑन आवर लैप. अपने लैप पर रखकर इसको हम यूज कर सकते हैं आसानी से. इसी का नाम इसलिए लैपटॉप रखा गया है. लैपटॉप कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी होती है वो लगभग सेम होती है डेस्कटॉप कंप्यूटर के. और इसका फायदा होता है ये लाइट वेट होता है और पोर्टेबल होता है. इसके अंदर एक रिचार्जेबल बैटरी होती है. इट हैज अ रिचार्जेबल बैटरी. लैपटॉप कंप्यूटर्स आर मोस्टली यूज्ड by marketing executives who travels frequently far from their offices. तो अगर ऐसे लोग जिनको ट्रैवल करना होता है, जैसे कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाना होता है, वो लैपटॉप्स को यूज करते हैं. इट ऑल्सो हैज some of the features that makes it more useful as compared to desktop. The third type of computer that comes under microcomputer is tablet. The tablet
is a portable computer smaller than the laptop computer. It has a touch screen as its primary input device instead of mouse. A tablet computer also has a rechargeable battery. टैबलेट भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है और इसका साइज लैपटॉप से कम होता है, लैपटॉप से लाइट वेट होता है। इसके अंदर एक टच स्क्रीन होती है और इसकी जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस एक टच स्क्रीन होती है एज कंपेयर टू माउस। माउस में यूज नहीं होता जनरली। टैबलेट कंप्यूटर सो हैज ए रिचार्जेबल बैटरी, इसमें भी एक रिचार्जेबल बैटरी होती है, जैसा आप साइड में यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक टैबलेट है जो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है। सो इट वाज all about the types categories of computers, and in our next video we will discuss mini computer, mainframe computers and supercomputers.